So let's start without wasting the time. We have already spent some time. Yes, sir. The first question is, he says, I am your friend and you are my friend. He says, I'm your friend and you are my friend. How will you repeat it? Means how will you just change it into indirect narration? कैसे करेंगे इसको? Indirect narration में change. Sorry, sir, I was not getting you. What you said? I said, he says, I am your friend and you are my friend. You have to change it into indirect narration. You have to just repeat it. This is a statement of that person. How will you do that? Okay, honey. Yes, honey, please. He says uh, that uh, he is my friend and I am his friend. Umang, is honey correct or any correction required? No, sir. Honey isn't correct. Then what correction is required? He says that he is the friend of that he's talking about, and he he is the friend of him. Okay. So nobody else will try this sentence and tell me who is correct, honey or Umang? Honey is 100% correct. Okay. Okay. Second, Sita will say, everything I have is yours. I have done it. Third, no, fourth, we shall help you, they said to Sita, in case nobody comes to help you. Do you people have the PDF open? Yes, Okay, yes, sir. that's okay. Anna, हाँ बेटा. can you please send the PDF again? I couldn't find it. So why don't you go to the Telegram channel and just, yes Roshni, and go to the file section and search for narration and you get narration 78. Yes Roshni, you try. I can send it after the class is over beta. Yes Roshni, it is your chance because you are the only one who has raised the hand. सिर्फ आपने हाथ उठाया रोशनी. बोलिए. They said to Sita that they would help Sita. They would help her in case nobody comes to help her. Correct. Correct. Sir, which question number is going on? Fourth number beta. They said to Sita that they would help her in case nobody came to help her. Sir, exercise 81. 78. Okay, sir. Question number 5. I can never forget you, said she. वो वाला बल्ब ऑन कर दीजिए, लाइट. Okay, Honey, Roshni, Mayank, so many people have raised their hands. So I will first give the chance to Rohit. Rohit. She said she could not never. She said to me she could not forget me. Okay. Okay. Aditya. She said to me that she could never forget me.
मयंक, Sir, same Aditya. सेम एज आदित्य. रोशनी, She told me that she could never forget me. ओके. हनी, Same as Roshni Didi. सेम एज रोशनी. उमंग, She said that she could never forget me. She could never forget him. हिम. सर सेम एज उमंग. ओके. हिम कहाँ से है बेटा? हिम कौन है इसमें? Sir, me. क्योंकि आपने बोला था सी सेड टू मी, तो उसने मुझसे कहा, तो ये यू तो हम ही है ना, इसलिए मी होगा ना, राइट? Yes, sir. सर लेकिन यहाँ पे मेरा बात तो नहीं हो रहा है. देखिए, उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ. अब ये किससे कहा बात, ये हम पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि वहाँ तो लिखा हुआ नहीं है कि हम किससे कहलवा दें, मतलब किसको बोल रही है, हम डाल देंगे इन्फॉर्मेशन. Yes. तो हमने खुद को डाल दिया. इतनी अच्छी बात है, हम खुद ही को डाल देंगे. Okay, sir. बस ऐसे ही, मतलब तुम कुछ भी डाल सकते थे. सी सेड टू हिम भी कर सकते थे. अब सी सेड टू हिम, उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती. अब ये यू के जगह कौन हो जाएगा? हिम हो जाएगा. यस हनी, बोलो बेटा. So Mama, we can say that she said to you, he said हाँ. to my mama. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो. ये तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें बताया वो नहीं है कि शी ने किससे कहा था, राइट? Yes, sir. Was mine wrong? नहीं, आपने शी सेड टू मी बोला और उसके बाद हिम में बदल दिया, तब गलत हो गया. क्योंकि वो शी जब So मेरे what about mine? 100% करेक्ट बेटा. दैट वाज फ्लॉलेसली करेक्ट. आई थिंक आदित्य वाज आल्सो Mine, करेक्ट. आदित्य वाज आल्सो करेक्ट. आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग बेटा. मयंक वाज आल्सो करेक्ट. ओके. अब वहां पे दे तो बोल रहा है वो, उसको हम ऐसे डाल देते हैं, सी सेड टू हर टीचर, राइट? आई कैन नेवर फॉरगेट यू. कभी कभी टीचर्स ऐसे लाइफ में चेंजेस ला देते हैं, जहाँ पे बच्चे जब स्कूल से या कोचिंग से या फिर कॉलेज से जा रहे होते तो अपने टीचर को बोलते, सर हम आपको कभी नहीं भूल सकते, राइट? ऐसा बोलते हैं. ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, भगवान ना करे, ये तो जीवन का परम सत्य है कि कोई अंतिम सांसें ले रहा है और पिता हैं या फिर दादा हैं, उनको भी हम लोग बोलते हैं कि हम आपको कभी नहीं भूल सकते हैं. मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे वो हम किसको ऐड कर देंगे वहाँ पे कि किससे ये बात कही जा रही है, तो हम पे डिपेंड करता है, राइट? है ना? हम आपके बारे में भी सोच सकते हैं कि शी ने आपसे ये बात कही होगी, तो हम बोलेंगे सी सेड टू यू, है ना? सोचिए, हम आपके बारे में भी बात सोच सकते हैं ना कि शी ने आपसे ये बात कही होगी, तो शी सेड टू यू दैट शी कुड नेवर फॉरगेट. अब मी बोलेंगे कि यू बोलेंगे? सोच के देखिए. You. यू बोलेंगे You. ना. इस समझ में आ रहा खेल क्या है, कहाँ पर से इसका ट्यूनिंग हो रहा है, राइट? सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, आई विल कम अगेन टुमारो, ही सेड. ओके, आई विल कम अगेन टुमारो, ही सेड. आदित्य बोली बेटा. He said to me that he would come again tomorrow. He would come again. ओके He would come again that day. ओके, वेरी गुड. गुड. हनी. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. हनी. He said to me that he would come again tomorrow that day. वेरी गुड. इसके बाद हम देंगे उमंग. Yes, he said that he would come tomorrow. He would come the following day. ओके. रोशनी. He said to me that he would come again following day. नैतिक.
रोहित? He said that he would come again tomorrow. टुमारो, अच्छा। आदित्य को भी थोड़ा टुमारो में कंफ्यूजन था। मयंक? He said to me that he would come again the next day. अब देखो बेटा, यहाँ टुमारो नहीं होगा। क्यों? ये टुमारो का मतलब होता है वन डे आफ्टर टुडे। ये टुडे की तो बात है नहीं, जिस दिन कहा था उस दिन की बात है। द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे उसका मतलब होगा, है ना? नैतिक का कुछ इशू चल रहा है इंटरनेट का लगता है। So following the फॉलोइंग डे का मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे का मतलब भी अगले दिन। किसके अगले दिन? Yes. जिस दिन बोला गया था उसके अगले दिन, राइट? yes sir. क्वेश्चन नंबर सर आप हाँ बेटा बोलिए। सर आपके माइक से कभी कभी घर घराहट होता है, उसके बाद रुक जाता है। एक मिनट। घरघराहट नहीं होगा। हाँ हनी बोलो। Mama, I have a confusion in question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में, अच्छा चलो देख लेते हैं। चलो, कि इसमें पूरा सेंटेंस में कंफ्यूजन है या कोई खास पार्ट में बेटा? पूरे सेंटेंस में। चलो देखते हैं। शी सेड आई कैन नेवर फॉरगेट यू। शी ने कहा, किससे कहा भाई? कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है तो गेस कीजिए, अंदाजा लगाइए, अपना स्मार्टनेस लगाइए कि किससे ये बात कह सकती है सी। So Mama, can't we say that she told me that she could never forget you? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आते हैं। मृणाल, पीडीएफ है आपके पास? मृणाल पीडीएफ? नो सर। पीडीएफ नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे दिया है, तो क्लास के बीच में से ही हमको देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा दोस्त ऐसा है जो थोड़ा ज़्यादा ही महसूस होता है। लो, अब जब हटे ही हैं क्लास से तो उसको भी दे देते हैं। हटना नहीं चाह रहे थे, चलो आगे। देखो मृणाल मिला? देखिएगा सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आई कैन नेवर फॉरगेट यू एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में है, इन्वर्टेड कॉमा में है। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया भाई? ये बताओ, पढ़ो। किसने दिया? शी ने दिया, एक लेडी है उसने दिया, राइट? क्योंकि लिखा है सेड शी, कि ये स्टेटमेंट किसने कहा? शी ने कहा। Yes. आई कैन नेवर फॉरगेट यू, शी ने किससे कहा? ये तो नहीं दिया है सर। रिस्पॉन्ड करेंगे, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है? Yes sir. जिनको नहीं समझ में आएगी बात वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं समझ रहे हैं, और जिनको समझ में आएगी वो जवाब देंगे, ठीक है? सर पीडीएफ नहीं मिला। व्हाट्सएप पे बेटा नहीं आया सर। अरे रुक जा, ऐसे कैसे? रुक जा, जाना ही चाहिए। आ गया सर। आ गया है ना? इंटरनेट से बहुत हनी, तुमको भी मिल गया होगा। चलो, हम सोचे थे कि हनी वो क्लास के बाद दे देंगे। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आई कैन नेवर फॉरगेट यू, राइट? तो इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिखा है तो वो किसी का स्टेटमेंट है, इतना तो पहले मालूम सबको, हाँ या ना बोलना। मतलब वो बात किसी न किसी ने कही है, इन्वर्टेड कॉमा में तभी लिखा गया है, राइट? Yes, Mama. किसने कही है बात, ये बताओ? शी ने कही, राइट? कितना पता चल रहा है? ना बोलना चाहिए। रोशनी, नैतिक, रोहित, आपकी श्रेष्ठ,
सारे बच्चे जवाब देना बच्चों। मेरी आवाज़ जा रही है ना? Yes, Mama. सब लोग सो गए क्या क्लास के बाद? No, sir. No, sir. तो चलो ये बताओ कि शी ने ये बात कही कि आई कैन नेवर फॉरगेट यू, जिससे कही होगी बात वही ना यू होगा, सोच के देखो तो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात किससे कही होगी? क्या क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे? No, sir. No, sir. तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि किसी एक को भी ऐड कर दो कि किससे ये बात कही। किसको ऐड करोगे? अपने हस्बैंड खुद को। को। ठीक है, आप खुद को ऐड कर रही हैं। चलिए, रोशनी खुद को ऐड कर रही है, तो रोशनी क्या बोलेंगी? शी सेड टू मी, राइट? Yes. दैट। अब ये आई कौन है जो बोल रहा था? Yes, sir. ठीक है, शी है। ठीक है, तो फिर बोलेंगे शी। क्या आज की बात है ये? अभी की बात है? प्रेजेंट की बात है ये? No, sir. No, sir. कैसे पता चला? कैसे पता चला कि पहले की बात? Said. सेड से Said. पता चला कि वो पास्ट की बात है। ठीक है, क्योंकि सेड V2 है और V2 पास्ट के बातों के लिए ही यूज किया जाता है, राइट? तो शी सेड टू Yes. मी, ये रोशनी बता रही है अब सबको। शी ने रोशनी को पहले ही बोल दिया था ये बात, अब रोशनी सबको ये बता रही है कि शी सेड टू मी दैट शी, ये शी वो लड़की है जिसने रोशनी को ये बात कही। शी कुड, कुड क्यों? क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए कैन नहीं यूज कर सकते। कुड नेवर फॉरगेट यू। अब ये यू कौन है? ये यू कौन है? Me. हाँ, रोशनी खुद ही है, क्योंकि उसने रोशनी से ही कहा था कि आई कैन नॉट फॉरगेट यू। तो अब फिर से रोशनी अपने लिए क्या बोलेंगी? Me. मी बोलेंगी। अगर हमको ये बात रोशनी बता दी और अब हम सबको बता रहे हैं कि शी सेड टू रोशनी, शी सेड टू रोशनी दैट रोशनी। शी कुड नेवर फॉरगेट। अब यहाँ यू के जगह क्या? Her. हर, क्योंकि यहाँ अब हम रोशनी के लिए हर यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हनी, आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ? Yes, Mama. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। लिखा है द टीचर सेड मोहन व्हाट यू डू इज नॉट गुड। मोहन व्हाट यू डू इज नॉट गुड। वेरी गुड। आदित्य, रोशनी ने हाथ उठाया, फिर अंशु और रोहित ने एक साथ हैंड रेज किया। ठीक है, उमंग ने। अब हम जब सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब देना होगा, राइट? मेरा पहला सवाल है कि ये बात कही किसने? टीचर। टीचर ने। श्रेष्ठ और मृणाल भी एक्टिव हो जाएं, जवाब दें। नैतिक का तो इंटरनेट इशू है, नहीं जवाब दे रहा, बात समझ में आता है। ठीक है, ठीक है। टीचर ने कही। मृणाल, आप देख के बताइए किसने कही ये बात? मृणाल। गरिमा का भी इंटरनेट खराब है क्योंकि गरिमा आ रही है जा रही है। मृणाल जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब नहीं देंगे तो गड़बड़ होगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ मृणाल बोलिए। कौन सा नंबर है सर? क्वेश्चन नंबर 7। टीचर सेड मोहन व्हाट यू टू इज नॉट गुड। किसने कही ये बात मृणाल? टीचर ने सर। टीचर ने कही। किससे कही है? किससे कही? मोहन से। मोहन से कही है। मृणाल कह रहे हैं कि मोहन से कही है। आप उमंग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट माइक ऑन नहीं करेंगे उमंग आप। ठीक है, दिक्कत होता है वैसे। हाँ बेटा, सब लोग गौर से सुने। मृणाल ने कहा कि टीचर ने ये बात कही, ये सही है। उन्होंने एक बात और बताई कि मोहन से कही है। क्या ये बात सही बोल रहे हैं मृणाल? Yes, sir. Yes, Mama. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. ठीक है, वेरी गुड। आदित्य कम जवाब देते हैं। ठीक है,
अब ये बात कब की है? अभी प्रेजेंट की है या पास्ट की है? रोहित बोल रहा है पास्ट। पास्ट की सर। रोशनी और रोहित बोल रहे हैं पास्ट की। पास सब लोग पास्ट का बोल रहे हैं। पास अब हमको जवाब ये चाहिए कि ये पास्ट की बात है, कैसे पता चला? The teacher said. हाँ, सेड टीचर से। सेड मेरा माइक इको कर रहा है सबके लिए क्या? नो No सर sir. नो सर कर रहा था। अच्छा, हालांकि हम कोई छेड़छाड़ सेटिंग में नहीं किया। ठीक है, तो ये सेड से पता चला, SAID। ठीक है, मृणाल एक्टिव रहना पड़ेगा बेटा। एक्टिव रहेंगे तो सीख जाएंगे, और एक्टिव नहीं रहेंगे तो सीखने का एहसास होगा। ठीक है बेटा, बाहर जो नॉइज हो रहा है बंद करवा दो, बोलो कि डिस्टर्ब होता है क्लास पढ़ाते समय। ठीक है, अब ये सेड से पता चला कि पास्ट की बात है, और पास्ट में टीचर ने कहा क्या? क्या कहा? अंशु बताएंगे। अंशु बताइए, क्या कहा टीचर ने? What he did was not good. टीचर ने मोहन से कहा व्हाट यू डू इज नॉट गुड, Yes. है ना? व्हाट यू डू, टीचर का स्टेटमेंट यही है, व्हाट यू डू इज नॉट गुड। लेकिन जब हम कह देंगे, टीचर की इस बात को रिपीट करेंगे ये बताते हुए कि टीचर ने क्या कहा, तो हम यू यूज करेंगे या ही यूज करेंगे? He. ही यूज करेंगे, यू नहीं यूज करेंगे। टीचर ने यू यूज किया था क्योंकि टीचर डायरेक्ट मोहन से बोल रहे थे, तो मोहन को बोलेंगे या किसी को बोलेंगे तो यू बोलेंगे ना, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए लेबोरियस बॉय, यू आर नॉट ऑनेस्ट, ऐसे कुछ बोलेंगे ना, यू बोलेंगे ना उसी को, डायरेक्ट बोलेंगे तो। लेकिन Yes, अब sir. हम मोहन को नहीं बोल रहे, हम दूसरे लोगों को बता रहे टीचर का ये बात। तो अब हम दूसरे लोगों को बता रहे हैं तो मोहन के बारे में बता रहे ना कि टीचर ने मोहन से ही कहा, तो मोहन के लिए यू यूज करेंगे कि ही यूज करेंगे? सोच के बताइए। He. ही ही यूज करेंगे। तो व्हाट ही डू की डिड, सोच के बताओ। Did. क्यों डिड? Did. क्यों डिड? क्यों डिड? क्योंकि पास्ट का past है। पास्ट का है तो V2 Past का चाहिए। है। पास्ट की बात है तो V2 चाहिए, राइट? अब पास्ट की बात है, सेड से पता चल रहा है बार बार, है ना? तो डू का V2 Yes, क्या हो sir. जाएगा? डिड। अब पास्ट की बात है तो इज होगा कि वाज होगा? was वाज। Was was हाँ, नॉट गुड। व्हाट ही डिड वाज was नॉट गुड। व्हाट ही डिड वाज नॉट गुड। Not not good. हाँ, ठीक है। जितने लोग हैंड रेज किए हैं, क्या उनका आंसर यही था या डिफरेंट था? yes sir यही था, same यही मामा था, ठीक है, यही था। हैंड लोअर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जिन बच्चों को समझ में आ गया उनको यही छोड़ना नहीं होगा, फिर इस एक्सरसाइज को और सॉल्व करना होगा या इसके जैसे दूसरे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने होंगे, राइट? जो ऐप पे भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम पे भी हम दे रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 8th में। ही सेड वेल आई शैल पनिश यू टुडे। 8th नंबर। रोशनी ने फट से हाथ उठाया, नैतिक ने हाथ उठाया, वेरी गुड। मृणाल ने भी हाथ उठाया, वेरी गुड। मृणाल को पहला मौका देंगे, नैतिक को दूसरा, रोशनी को तीसरा मौका, अनी को चौथा। मृणाल। he said will I shall punish you today। ठीक है, एक पर्सन कह रहा है कि क्या मैं मतलब will I shall punish you today, मुझे क्या तुम्हें आज नहीं नहीं नहीं, इस वेल का कोई वैल्यू नहीं है, वेल को भूल जाइए। आप बोलिए आई शैल पनिश यू टुडे। I shall punish you today means मैं तुम्हें आज पनिश करूंगा, आज Very मैं good. तुम हाँ, आज मैं बिल्कुल तुम्हें पनिश करूंगा। बिल्कुल। अब इसको आप ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे? क्या चेंजेस करेंगे इसमें बताते समय? क्योंकि ये तो स्टेटमेंट आई शैल पनिश यू ही का स्टेटमेंट है, ये आपका तो स्टेटमेंट है नहीं। देखिए, आइडिया लग रहा है कि क्या चेंजेस करेंगे? यस सर। बताइए। गलती होने से कोई दिक्कत नहीं है। You shall punish me
वेरी गुड, You shall punish me today. वेरी Will गुड। will you shall sorry sir. कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। और Will you shall punish today. वेरी गुड। Punish हाँ, आई छूट गया सर मतलब। कोई नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, आप प्रयास किए, दैट इज गुड। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने बच्चे हाथ उठाए हुए हैं सबका करेक्ट बना हुआ होगा। सर आ गया सर आ गया। बोलिए बोलिए। Will you सर यू के साथ बिल लगता है। कुछ भी लगा दीजिए, ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। Will you will punish me today. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर सबका सही होगा, ठीक है। Yes, sir. आंसर है इसका, he said that he would punish me that day. He said to me that he would punish me that day. सबका सही है आंसर, हाँ ना बोलना। Yes, Mama. Same. सेम है, ठीक है। अब जरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। इसमें ही ने कहा, अब किससे कहा ये पता है क्या? लिखा हुआ है क्या सेंटेंस में? नहीं। नो सर। तो हम खुद को डाल देते हैं उस जगह पर, हमेशा बोले थे कि खुद को हम डाल देते हैं, राइट। बोले किसी और को नहीं डाल सकते, हाँ डाल ही सकते हैं, लेकिन हम खुद को डाल रहे हैं, राइट। तो मुझसे कहा तो ही सेड टू मी, हाँ ना बोलना। Yes, Mama. Yes, sir. मुझसे कहा तो ही सेड टू मी दैट आई, हम सजा देंगे, सजा हम देने वाले हैं कि वो आदमी देने वाला है? वो आदमी देने वाला है। तो अब आई बोलेंगे कि उस आदमी के लिए ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? हाँ। और ये फ्यूचर तो है, लेकिन प्रेजेंट से फ्यूचर है कि पास्ट से फ्यूचर है? पास्ट है फिर। Past से future. इसीलिए क्या बोलेंगे? past से future. Would वुड बोलेंगे, ही वुड Would punish me that day. Punish me that day. पनिश मी He would कैसे आ punish me गया? मी कैसे आ गया ये बताओ? he would punish him that day. हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे बदलो, हम पूछे मी कैसे आ गया ये बताओ। सर क्योंकि वो मीन्स वो मुझसे बोल रहा है। हमसे बोला था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ही सेड टू मी, तो ये यू कौन है? मुझसे बोलेगा कि तुमको पनिश करेंगे, तो ये मी कौन है? हम इसीलिए हम अपने आप को क्या बोलेंगे? मी मी ही बोलेंगे। Me. क्या ये टुडे की बात है? No, sir. That नो day. सर दैट दिन की डे। बात है. That day. दैट डे की बात है। मृणाल देख रहे हैं एक साथ एक सेंटेंस में कितनी चीजें गौर करनी पड़ रही हैं, यस सर। और कुछ नहीं पढ़ाई हो रहा, सिर्फ टेंस पढ़ाई हो रहा है, सिर्फ टेंस पढ़ाई हो रहा है ना। पास्ट की बात है, V2 होगा। पास्ट से ही फ्यूचर चल रहे हैं तो विल नहीं होगा। फ्यूचर विल होता है, लेकिन पास्ट की बात से फ्यूचर को रिलेट कर रहे हैं तो विल नहीं होगा, वुड होगा। ठीक है, सिर्फ टेंस ही हो रहा है, कुछ नहीं पढ़ाई हो रहा है टेंस के अलावा। He said, Radha, you are my life. 10th number. He said, 10th number. Radha, you are my life. रोशनी ने सबसे पहले हैंड रेज किया। बोलिए रोशनी। Mama, can you repeat? I had a network problem. I have given you the PDF on WhatsApp. He said, Radha, you are my life. He told Radha that she was his life. Good. रोशनी ने कहा, और हनी हैंड रेज की है। बोलिए हनी। Same as Roshni Didi. ओके, सेम एज रोशनी दीदी। वेरी गुड। रोशनी इज 100% करेक्ट, सो इज हनी, राइट। अब देखो कैसे, जिनको दिक्कत हुआ होगा वो समझिए। ही ने कहा, किससे कहा? राधा से। तो हम लोग बोलेंगे ही टोल्ड राधा, या ही सेड टू राधा दैट यू। ये यू कौन है? सोचो, यू तो हमेशा वही होता है जिससे कोई बात कही जाती है।
तो कही गई राधा से, तो यू तो राधा है, लेकिन राधा के लिए हम यू नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ही ने राधा से कहा था इसलिए यू यूज किया था। हम राधा से नहीं कह रहे, हम राधा के बारे में कह रहे हैं, हम राधा के बारे में कह रहे हैं। तो किसी लड़की के बारे में कहा जाए तो क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे कि शी यूज करेंगे? शी। और कहा था पास्ट में, तो अभी वो उसकी लाइफ है कि थी तो वॉज हो जाएगा। माई लाइफ, मेरी लाइफ है राधा। नो, हिज। No. हिज लाइफ, किसकी? जो बोलने वाला आदमी था उसकी, राइट? तो जो लोग समझते हैं कि टेंस से सिर्फ टेंस बदलता है, तो टेंस से सिर्फ टेंस नहीं बदल रहा है, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, इस सब पर इस सब का बहुत असर पड़ता है अंग्रेजी लिखते समय, राइट? यस उमंग, कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए उमंग। वेरी गुड। थोड़ा सा लगता है इंटरनेट स्लो चल रहा है। No, his problem. आई होप कि ये 10th नंबर सबको क्लियर हो गया होगा। Yes. सर। Yes, sir. ठीक है, 11th देखिए तो एक सेंटेंस। सर व्हाट अबाउट 9? 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। सर व्हाट अबाउट 9th? Okay, 9th number. She said, Radha, you will be awarded for the bravery you have shown today. Yes, go ahead with the 9th. 9th try करो सब लोग। उमंग पहले से ही हैंड रेज करके रखे हुए हैं। रोशनी का फर्स्ट आया है, थोड़ा सा वक्त देंगे इसमें। हनी का भी आ गया 9th के लिए। यार एक बार में गिर जाएगा बच्चा, गिर जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। देखो टीम, बहुत सारे बच्चों ने, मृणाल ने भी हैंड रेज किया है, हनी ने भी। चलो मृणाल आप बताओ। Sir, question है, she said, Radha, you will be awarded for the bravery you have shown today. सर, कहने का मतलब बोला जा रहा है कि मीन्स राधा, तुमने जो आज ब्रेवरी दिखाया है उसके लिए तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसको आप अपने लैंग्वेज में बदलिए। क्या आप बता रहे हैं शी के इस स्टेटमेंट को, तो कैसे बोलेंगे? फटाफट। Radha will be awarded. She said that Radha will be awarded for his bravery. बहुत अच्छा। अच्छा, राधा विल बी अवार्डेड मृणाल की वुड बी अवार्डेड? राधा would be awarded. क्यों वुड हो गया, विल क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर फ्यूचर का है यहाँ पर। फ्यूचर तो विल होता है बेटा, फिर यहाँ वुड कैसे हो गया? ये फ्यूचर पास्ट से रिलेट हो रहा है। अच्छा, फ्यूचर पास्ट कैसे, पास्ट से कैसे रिलेट हो रहा है? क्योंकि ये बात सर, फ्यूचर किसी की ने है। कहा था। हाँ, फ्यूचर वेरी की गुड, कहा वेरी था। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात फ्यूचर की है, लेकिन ये कहा था किसी ने पास्ट में। पास्ट में किसी ने कहा था, राइट? मृणाल, समझ में आ रहा है कि क्या करने से क्लैरिटी बढ़ते जाएगा? यस सर। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मृणाल, इतना आपको करना पड़ेगा। और जैसे ये बच्चे फटाफट बता रहे हैं ना, क्योंकि ये 100, 200, 300, 500 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर चुके, ठीक है? और आपको करना होगा, टाइम देना होगा घर पे इस पे आपने। यस सर। हाँ उमंग, हम देख रहे हैं आप मैसेज में लिखे हैं कि बहुत सारे इंटरनेट इशू हो रहा है, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं। बेटा उमंग, आपके बारे में मेरा ये ओपिनियन कतई नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या फिर आप कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है? इसलिए आप अपने आप इमेज क्राइसिस में मत जाइए कि हम जवाब नहीं देंगे तो सर हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। हाँ, कारण बता दीजिएगा तो निश्चिंत रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सोचना नहीं है आपको। हाँ, आपके बारे में जो हम बात सोचते हैं कि आप हुलचुलिया बहुत है, बहुत हुलचुलिया आप। क्या बोला? नो सर।
अब हुलचुलिया कम कर दो। हाँ, अब पहले से बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, ये बात से हम अग्री करते हैं। ठीक है, सर अब राजा रेन का बहुत है। 5। हाँ, क्या बोल रहे हो उमंग? सर अब हुलचुलिया बच्चा में हम लोग की क्लास में बस राजा रेन है। राजा रेन भी शांत हो जाएगा हाँ धीरे धीरे, है ना, डिसिप्लिन हो जाएगा। डिसिप्लिन क्या प्यारा है, थोड़ा सा समझना है खाली उसको। यस सर। हाँ जी, देखिए, हुलचुलिया मतलब क्या है? हुलचुलिया मतलब नॉटी, बहुत ज्यादा सर नॉटी। हाँ, आई एम गोइंग टू हियर ओनली। ओके ओके। राजा आर्यन को दिल्ली से मम्मी यहाँ बिहार शरीफ रख के गई हैं पढ़ने के लिए, सोचो। सर बट आई विल ट्राई टू गिव द आंसर इफ माय ओके ओके, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ओके ओके। तो देखो, अब ही ने कहा राधा से, ठीक है, 9th में, ही सेड टू राधा। शी ने कहा। हाँ, शी ने कहा, ठीक है। ये शी रोशनी खुद को फील कर रही है एकदम क्योंकि राधा इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम है ये पूरा फील ले रही है राधा के लिए, ठीक है। शी सेड टू राधा। अब हम बता रहे हैं तो हम यू तो नहीं बोलेंगे ना, हम शी बोलेंगे। शी वुड बी हैप्पी, नहीं, क्या, शी वुड बी अवार्डेड। अवॉर्डेड। हाँ, शी वुड बी अवार्डेड फॉर द ब्रेवरी यू, नो, शी शी हैव शोन की हैड शोन हैड चोन टुडे की दैट डे, That टुडे की दैट डे। अच्छा, जो बच्चे क्लास में है वो मेरा हाथ का जेस्चर भी देखेंगे हम क्या बात कर रहे हैं। हाथ, जब वीडियो देखिएगा तो ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंस वाला टेंस चल रहा है, इसमें मेरे हाथ का जेस्चर बहुत मैटर करेगा आपको समझने में। मेरी बात समझ में आई सब? यस यस सर। बच्चों, अब टाइम हो चला है, अब रुकना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।